Good evening, everyone. How are you? Fine, that's great. Okay, so now we are just going to start the class of English speaking. English speaking and English communication. Today, something different I would like to tell you. Understand? If I will talk about speaking, in speaking one person, who is sir? In speaking one person. One person is speaking in front of the audience, that called the speaking. But if I will talk about communication, so communication, it is not possible by one person, it is possible by one more. You can say two, or you can say three, or you can say four. One more means if you are alone, you can communicate to yourself, but alone you cannot communicate to any other one. So for communication, there is important one person more. Communication means you are sending the message, and you are receiving the message. I suppose that I am speaking anything and you are receiving. So you are receiving my message, and after that you are speaking anything, I am receiving your message. That called the communication. Communication, दूसरे भाषा में बोले, if we will talk about in a different word and line, communication means communication is a process of exchanging ideas. Communication is a process of exchanging ideas, that called the communication. But speaking is the way by which we are expressing our ideas in front of the public, that called the speaking. Speaking ही public speaking में आता है. जब ढेर सारे लोगों के सामने आप बोलते हो तो वही public speaking हो जाता है. अकेले में बोलते हो तो क्या हो जाता है? Speaking हो जाता है. देखिए सर, मैं अगर बात करूं, एक होता ऑफिशियल, क्या होता है? ऑफिशियल. और एक होता नॉन ऑफिशियल, क्या होता है? नॉन ऑफिशियल. तो ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल में अंतर क्या है, पहले ये समझते हैं. नॉन ऑफिशियल, आप सब लोग बोलने में बहादुर हो. नॉन ऑफिशियल में आप सब लोग एक्सपर्ट हो बात करने में. मतलब अगर आपसे एकदम कोई सड़क पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आप लोग खड़े हो जाओ और आपस में बात करो तो भर भर के आपको बातें आती हैं. खूब दिमाग आपका चलता है, हर बात का जवाब आपके पास होता है, हर टॉपिक का जवाब आपके पास होता है, और खूब आप बतियाते हो इधर उधर की बातें. वो आप नॉन ऑफिशियल बात करते हो, इसलिए आपको बात करना खूब आता है. लेकिन जैसे ही आप ऑफिशियल में जाते हो तो ऑफिशियल में आपको कई चीजें ध्यान देनी होती हैं. कहीं कुछ त्रुटि ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना निकल जाए, और जो मैं बोल रहा हूं उसको जज करने वाले लोग होते हैं. तो इस डर के नाते लोग बोलना ही छोड़ देते हैं. नॉन ऑफिशियल में उनको कोई जज नहीं करता. अबे निकल जा, तुम्हें निकल जा, इधर आ उधर जा, चुप है हो, कुछ भी निकल जा जुबान से, आपको कोई डर नहीं होता, क्योंकि दो बार सॉरी बोल लेते हैं, सामने वाला दोस्त शांत हो जाता है. लेकिन ऑफिशियल में ऐसा होता नहीं है. यही डर, यही फोबिया इंसान को बोलने नहीं देता. दैट इज द फोबिया. यू आर अनेबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक. सो नॉन ऑफिशियल, each and everyone is a well. But if I will talk about official, each and everyone is not a well. So if you want to be officially well in a communication, in a speaking, so you have to face the camera. You have to face the public. Understand? One thing is very important. If you have fear, never and ever you can be great speaker. Any types of the fear. Many types of the fear. Fear, you can say fear of insult, fear of wrong pronunciation, fear of forgetting the topic, fear of judgment. The people will judge by my speech. Am I speaking right or am I speaking wrong? So if you want to be a great speaker, you want to be a best speaker, so you have to control your fear. Where is your fear? You tell me. Fear, it is in your mind. It is in your mind. No lion is here, no gun machine is here, no anyone don't have, you can say doesn't have anyone, the knife or sword, anyone, they will come to cut your neck. They will say to you, don't you speak here, don't you communicate here. No one is there right now. Understand? So problem is what? Fear, it is in your mind. The mind, what is your fear? Fear, if what I will speak, it will be wrong then. Yes, this is right. You have to feel fear. But matter is not, you don't speak. डरना जरूरी है, लेकिन डर का मतलब ये नहीं हुआ कि बोलेंगे ही नहीं. अंडरस्टैंड? डर सबको लगता है, लेकिन डरने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम बोलेंगे ही नहीं. जब बोलोगे नहीं तो कभी बोलने आने वाला नहीं है. सीधी सी बात है.
अखाड़े के किनारे पर खड़े होकर के कभी पहलवानी सीखी नहीं जा सकती। पहलवानी सीखना है तो अखाड़े में आपको उतरना ही पड़ेगा। और ज्यादातर लोग अखाड़े तक तो चले जाते हैं अखाड़ा सीखने के लिए, लेकिन अखाड़े में उतरने के लिए डरने लगते हैं। जैसे उनको अखाड़े में उतरने के लिए कहा जाता है, उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं, वाइब्रेशन शुरू हो जाता है और उनके जुबान से एक ही चीज निकलता है, कल से। उनको लगता है कि वो तैयार होकर कल आएंगे, तब वो बोल लेंगे। मैं कहता हूं आज बिना तैयारी के ही बोलो, कोई तैयारी नहीं। यू डोंट हैव एनी प्रिपरेशन, यू डोंट हैव एनी नॉलेज, यू कैन स्पीक ओनली बाय योर एक्सपीरियंस, यू विल स्पीक ओनली बाय योर फीलिंग, वट एवर इज गोइंग ऑन इन योर माइंड यू विल स्पीक ओनली बाय योर फीलिंग। आज बिना तैयारी के बोल लो। आज से सीख लेना कि कल तैयारी करके आओगे। कल अगर तैयारी करके आए तो ठीक है, नहीं करके आए फिर बिना तैयारी के बोलो। बहुत होगा पटकी खा जाओगे ना, बहुत होगा लोगों से कम बहादुरी से लड़ पाओगे ना, विजेता नहीं बन पाओगे ना। लेकिन अगर रोज तुम ऐसा करते रहे तो यह जरूर है कि एक दिन तुम जरूर जीतोगे। क्यों? क्योंकि तुम दर्शक नहीं हो, तुम क्या हो भैया? अखाड़े के खिलाड़ी हो, अखाड़े में उतर रहे हो। लेकिन आप क्या है, हम क्या है? ज्यादातर लोगों का नेचर ये होता है, उनको हार से डर लगता है, इसलिए वो कभी जीतने की कोशिश नहीं करते। कुछ उदाहरण अपने दिमाग में बैठाओ। एक राजनेता जो राजनीति करता है, देश का प्रधानमंत्री, वो भी जब लड़ता है तो उसके अंदर भी हार और जीत का डर होता है। जीत की खुशी और हार का डर होता है। चाहे गांव का प्रधान जब प्रधानी लड़ता है तो उसके अंदर भी हार का डर होता है, लेकिन हार के डर के नाते अगर वो प्रधानी लड़ना छोड़ दे तो प्रधान कभी बन पाएगा? नहीं। लेकिन वो फिर भी लड़ता है, फिर भी वो लड़ता है। एक इंसान जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, एक स्टूडेंट, तो उसके हार की भी गारंटी वहां होती है, लेकिन फिर भी वो तैयारी करता है, फिर भी वो फॉर्म भरता है। अंडरस्टैंड? Am I right or wrong? Yes, sir. So इसी जोश और जुनून के साथ आप सभी लोगों को आज आना है और आकर के आपके अंदर जो भी पहले से भरा हुआ नॉलेज है, जो भी नॉलेज है, जो आप बोलना चाहो, अपना इंट्रोडक्शन देना चाहो, कोई स्पीच बोलना चाहो, किसी टॉपिक पर बोलना चाहो, मोटिवेट करना चाहो, वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक यू कैन स्पीक। बट वन थिंग इज रिमेंबर राइट नाउ कि आपको यू हैव टू यूज मिक्स करके बोलना है। क्या करके बोलना है? मिक्स करके, हिंदी एंड इंग्लिश। नॉट दिस ओनली कि आप हिंदी बोलना शुरू कर दे, जस्ट यू आर स्पीकिंग ओनली हिंदी। चलो, लेकिन जिसको मिक्स करके नहीं बोलने का मन कर रहा है तो वो टोटल इंग्लिश में बोले, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सपोज दैट यू वांट टू स्पीक, यू यस सर आई विल स्पीक ओनली इन इंग्लिश, यू स्पीक ओनली इन इंग्लिश, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। क्लियर? बट इफ यू आर नॉट कैपेबल, यू आर थिंकिंग लाइक दैट, यू आर नॉट कैपेबल। देखो, स्पीकिंग का सही मजा जानते हो क्या है? स्पीकिंग का सही मजा ये नहीं होता कि सिर्फ अंग्रेजी में ही बोलते रहो। स्पीकिंग का सही मजा होता है कि कौन सी बात किस भाषा में लोगों के सामने बोलोगे तो ज्यादा प्रभावशाली होगी, इसलिए उसको उसी भाषा में बोलना जरूरी है। जैसे क्या बताऊं कि आरजू क्या है मेरी? अभी आरजू शब्द हम लोगों का शब्द नहीं है, आरजू सबसे जुदा है मेरी। आप सभी लोग खुश रहो अपनी जिंदगी में, बस यही अपने रब से दुआ है मेरी। तो रब जो शब्द है ये भी हम लोगों का शब्द नहीं है, ये उर्दू शब्द है, लेकिन हमने यहां रब शब्द यूज किया है ना। भगवान भी यूज कर सकता था, लेकिन रब शब्द यूज करना थोड़ा सा अच्छा बना दिया इसको। तो स्पीकिंग का मतलब क्या हुआ? स्पीकिंग का सही मतलब यही है कि आप अंग्रेजी सीखो, लेकिन इसका मतलब नहीं हुआ कहीं स्टेज आपको मिल जाए तो सिर्फ अंग्रेजी में ही आप बोलो। अगर वहां कंडीशन ऐसा कुछ है तो आप अंग्रेजी में ही सिर्फ बोलो, लेकिन अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तो आपको यह समझना पड़ेगा कौन सी लाइन इंग्लिश में बोलने से और कौन सी लाइन हिंदी में बोलने से ज्यादा प्रभावशाली बनेगी। उस हिसाब से जब आप बोलोगे दैट यू विल बी अ ग्रेट स्पीकर।